Hello dear student, myself Rajendra Kamath. I welcome all of you on my channel. Today I am going to teach you the first lesson of English class 11, The Summer of the Beautiful White Horse. Actually this story is taken from the book Snapshot. Okay, at first I will read the paragraph of the story and then I will explain the meaning in Hindi as well as in English. Okay, let's see. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. Aram, he said. I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. It was not morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around of the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. Okay, so dear student, see, two important words are there. The first is magnificence. Meaning of this word is extremely beautiful. Okay, and the second one is daybreak. The meaning of this word is dawn. It means the morning time when sun is about to appear in the sky. That time of the day is known as basically dawn. So in fact here we see what happens actually. One day a 9-year-old Aram was asleep and was in a world of extremely beautiful imagination. His life was pleasant and kind of in a mysterious dream. His cousin Murad showed up on the window of his room at 4 in the morning. He called Aram, who jumped out of his bed and still couldn't believe what he saw out of the window. It was dawn and there was light enough outside to make him see outside what made him believe he was not dreaming. ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कहानी जो स्टार्ट होती है तो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहला कैरेक्टर का जो नाम है वो है आरम और दूसरा है यहाँ पर मुराद। ठीक है, तो यहाँ पर वन डे 9-year-old आरम वॉज asleep and was in a world of extremely beautiful imagination। यानी यहाँ पर ये जो लड़का है जो मात्र 9 वर्ष उसकी उम्र है वो अभी सोया हुआ था और ख्वाबों की खूबसूरत दुनिया में, कल्पनाओं की खूबसूरत दुनिया में वो खोया हुआ था। हिज लाइफ वॉज प्लीजेंट एंड काइंड ऑफ इन ए मिस्टीरियस ड्रीम। उसका जीवन जो था वो काफ़ी सुखों से भरा हुआ था, आप कह सकते हैं। क्यों भरा हुआ था? तो इसका कारण था मिस्टीरियस ड्रीम, क्योंकि वो अक्सर ऐसे स्वप्न, ऐसे ख्वाब देखा करता था जिससे उसको बहुत खुशी मिला करती थी। हिज कज़न मुराद, उसका जो कज़न था, नाम है यहाँ पे मुराद, सोल्ड अप ऑन द विंडो ऑफ हिज रूम एट 4 in the morning। सुबह के 4 बजे थे और उसका कज़न मुराद उसके खिड़की के सामने खड़ा था। ही कॉल्ड आरम, और वह उसका नाम लेके चिल्लाया आरम, who jumped out of his bed and still couldn't believe what he saw out of the window। आरम ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो उछलकर अपने बेड पर खड़ा सा हो गया। उसे ये भरोसा नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि वो खिड़की के बाहर क्या देख रहा था एक्चुअली में।
It was down and there was light enough outside to make him see outside. What made him believe he was not dreaming? यानी जो प्रकाश थी, जो लाइट था, वो पर्याप्त था कि वो खिड़की के बाहर देख सके। और जो वो खिड़की के बाहर देख पा रहा था तो उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वो अभी भी ख्वाब देख रहा है, जो नज़ारा उसे बाहर दिखाई पड़ रहा था। ठीक है। माई कज़न मुराद was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian. It's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. मेरा कजन मुराद जो था वो एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग के घोड़े पे बैठा हुआ था। I stuck my head out of the window. मैंने अपने सर को खिड़की से बाहर निकाल कर देखा। And rubbed my eyes. अपने आँखों को भींचते हुए। Yes, he said in Armenian. उसने अर्मेनियन भाषा में कहा, हाँ, इट्स ए हॉर्स, यह एक घोड़ा ही है। एंड यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई ख्वाब नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, और अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो चलो जल्दी से आ जाओ मेरे पास। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. This was the wonderful part. See, the word Armenian here means official language of Armenian branch, and longings and aching desire. Okay. तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इस पार्ट में आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो आरंभ है, ठीक है, उसको उसके जीवन का एक ख्वाब था, सपना था, और ये सपना था एक घोड़े की सवारी करना। ठीक है। और इसका जो कज़न है ये है मुराद। ये व्हाट काइंड ऑफ गाय ही एक्चुअली, आप इस लाइन को फिर से ध्यान से देखें। आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. This is very important line of this story. Everyone who had ever fallen into the world by mistake. यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली अपने किस्मत को कोसते हैं कि वो इस दुनिया में आए हैं तो ये बाई मिस्टेक आए हैं। यानी वो उनको लगता है कि उनका जो लाइफ है वो एकदम दुखों से भरा हुआ है। बट यहाँ पे जो मुराद है, एक ऐसा यहाँ पे ये लड़का है जिसको अपने जीवन में जो भी दुख हैं, जो भी मुसीबतें हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, वो उसको बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोचता, और वो अपने हर क्षण को लाइव बनाता है, खुशियों से भर देता है। ठीक है। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन यहाँ पर आरंभ जो है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि उसका ये कहना है कि इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, यानी उसकी जो पहली तमन्ना है वह है घोड़े। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग एंड हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और उसकी जो पहली इच्छा है वह है घोड़ों की सवारी करना। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ऐसा लग रहा था कि शायद उसके जीवन का ये सपना अब यहाँ पूरा होने जा रहा है। Murad was sitting on a white horse. Aram rubbed his eyes and stuck out his head out of the window. Murad assured him it was not a dream. He asked if he wanted a ride. He must make it quick. Murad was the type of person who enjoyed being alive, but he couldn't believe that he was seeing a horse in front of him. Aram's earliest memory was of horses, and he always wanted to ride one. This was the wonderful part, that he was actually going to ride a horse for real. Okay guys, so you have seen, I have explained this part of the story in Hindi as well as English, and I hope all of you have understood it well. Okay, now in the second place, we were poor. This was the statement of Aram actually here. This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. See what this line states here.
Aram think that actually he and his cousin both belong to a very poor family. They were so poor that they could not imagine about a horse. And when he saw his cousin with a horse, he could not believe this. And this belief did not allow him to think even that he was going to ride a horse. We were poor. We had no money. Our whole tribe was poverty stricken. Every branch of the Gargolian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family. Most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. We were proud. We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. See two words here, which meaning you must know here. The first word is comical. Comical means funny, and the next word, which is new one I think for you, that is Garoglian, and this is a word which means an Armenian tribe. And you know the meaning of tribe well, I think so. In Hindi it is known as a Janjati actually. So they belong to Janjati. So you can say the tribal people are not very well developed, and generally they used to spend most of their life in poverty. And the same thing is happening here because Aram and Murad both belong to a family. That family was actually very poor. Even they had not enough money to feed their bellies both the time. And it was given here in the story. Okay, so here we see that Aram's family was poor and had no money, so it was difficult for him to believe in what he saw outside his horse. यानी आरम का परिवार इतना गरीब था, उनके पास पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे, और इस कारण से उसको ये भरोसा नहीं हो पा रहा था, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने घर के बाहर एक घोड़े को देख पा रहा था. ही बिलोंग टू ए गर्गोलियन फैमिली. वो किस फैमिली को बिलोंग करता था? गर्गोलियन फैमिली को बिलोंग करता था. दैट वॉज स्ट्रिक्टली एंड फनीली इन पॉवर्टी. सी देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन हेयर. ओके ना. सो स्ट्रिक्टली यानी वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, बट फनीली इन पॉवर्टी. फनीली मीन्स व्हाट? यहाँ पे फनी पॉवर्टी का मतलब क्या है? एक्चुअली वो गरीब थे, लेकिन उनके रहन सहन का जो ढंग था, जो स्तर था, वो देखने वालों को ये कभी नहीं लगेगा कि ये गरीब हैं. क्योंकि जनरली जो एक गरीब परिवार होता है, दे ऑलवेज यूज टू बेग बिफोर अदर्स फॉर इवन ए स्मॉल थिंग्स. यानी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ये लोग दूसरे के सामने गिड़गिड़ाते हैं. यहाँ तक कि अपने उनका जो सेल्फ प्राइड होता है, जो आत्म स्वाभिमान कहते हैं हम लोग, उससे समझौता कर लेते हैं. अगर ज़रूरत पड़े तो झूठ भी बोलते हैं और बेईमानी भी कर लेते हैं. बट ये जो फैमिली है, जिसको यहाँ पे गर्गोलियन फैमिली कहा गया है, ये इतने स्ट्रिक्ट हैं, इतने ऑनेस्ट हैं कि भूखों रहना पसंद है, पर ये झूठ नहीं बोल सकते. आप यहाँ इस लाइन को देखेंगे. दे डिड नॉट इवन नो हाउ दे मैनेज टू गेट फूड फॉर देमसेल्फ एवरी डे. यहाँ तक गरीबी का आलम ये है कि इन्हें यह भी पता नहीं है कि हर दिन इनका पेट कैसे भरेगा, भरेगा भी कि नहीं भरेगा. ऑल्दो हिज ट्राइब वॉज पुअर. हालांकि उनका जो पूरा ट्राइब है वो पुअर है. दे वर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी. लेकिन ये पूरी की पूरी ट्राइब जो है अपने ईमानदारी के लिए जानी जाती है. फॉर 11 सेंचुरीज. और ये कुछ दिनों की बात नहीं है, 1100 सालों से ये चला रहा है. दे वर ऑनेस्ट, प्राउड एंड ऑलवेज बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग.
सबसे बड़ी बात कि ये पूरा का पूरा ट्राइब जो है ये का बहुत ज़्यादा ईमानदार है और इन्हें अपनी ईमानदारी पर गर्व है और ये सही और गलत में डिफरेंस करना जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। नो वन फ्रॉम देयर फैमिली वुड एवर स्टील एनीथिंग और वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीवन इन द वर्ल्ड। इनके परिवार में से आज तक किसी ने भी स्टील यानी चोरी के बारे में सोचा भी नहीं है और यहाँ तक कि किसी का फ़ायदा उठाना है ऐसा तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी ये परिवार इतना ज़्यादा ईमानदार है कि इनके ईमानदारी की कस्में वहाँ खाई जाती हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. No member of the Gregorian family could be a thief. This is a very important line you can see here, because theme of the story is based on this line. You can say here, I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. Two important words are there. Consequently means as a result, pious and religious, dharmic. Okay. Now, what the meaning of this paragraph is actually here. You can see, Aram was so excited that he was seeing a horse that was so pleasant and beautiful. यानी आरम इतना ज़्यादा एक्साइटेड था उस घोड़े को देखकर कि उसे बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुशी महसूस हो रही थी। ही कुड स्मेल, उसको ऐसा लग रहा था कि वो उस घोड़े की गंध तक को महसूस कर पा रहा है। एंड हियर इट ब्रीदिंग एंड स्टिल कुडंट बिलीव दैट मुराद और एनीवन इन द फैमिली कुड अफोर्ड ए हॉर्स। और यहाँ तक कि उसके ब्रीथिंग जो थी, उसकी जो धड़कनें थी, उसको तक वो महसूस कर पा रहा था। लेकिन जो सबसे मुख्य बात थी कि उसे ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मुराद या उसके परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा हो सकता है जो ऐसा घोड़ा अफोर्ड कर सकता है यानी खरीद सकता है। He was thinking if Murad had stolen the horse, but he didn't believe it. It as he thought, no one in his family could be a thief. ये तो बात तय थी कि वो इतने गरीब थे कि उसका भाई या उसके परिवार का कोई भी मेंबर एक घोड़ा खरीद सकता है, और वो इस बात को भी मानने को तैयार नहीं था कि उसके परिवार में से कोई भी एक चोर हो सकता है। यानी अगर उसका जो कजन मुराद है उसने घोड़े खरीदे नहीं तो इट मीन्स उसने उसकी चोरी की है, लेकिन कोई उसके फैमिली में चोर हो ऐसा तो वो सोच भी नहीं सकता। He started at his cousin and then he stared at his cousin and then at the horse. वो कभी अपने कज़न को घूर रहा था और कभी उस घोड़े को। There was a religious motionlessness and witness in both Murad and the horse, as one charmed him and the other scared him. कभी वो अपने कज़न को देख रहा था और कभी उस घोड़े को देख रहा था। एक और जहाँ उसे बहुत ज़्यादा चार्मिंग महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी, और तो दूसरी ओर उसे डर भी लग रहा था। डर इस बात को लेकर कि घोड़ा उसका जो कज़न है वो लाया कहाँ से, और खुशी इस बात को लेकर कि शायद उसका जो सपना था हॉर्स राइडिंग का वो साकार होने जा रहा था। Now see the next part. Murad, I said, where did you steal this horse? Leap out of the window, he said, if you want to ride. It was true. Then he had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not, as I chose. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing
as stealing something else. See, this is a very important line of this story. You can see. I will explain it later. It seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it was not stealing at all. If you were crazy about horses, the way my cousin Murad and I were, it was not stealing. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. Okay, so leap out is the word here, which I think are difficult for you. The meaning of this word is jump out from a place. Okay, now what does this paragraph want to convey? He asked Murad if he had stolen the horse. आरम अपने कजन मुराद से पूछता है क्या उसने ये उस घोड़े को चुराया था. मुराद रिप्लाइड इफ ही वांट्स अ राइड ही मस्ट जंप आउट ऑफ द विंडो. तो ये जवाब देने के बजाय कि उसने घोड़े को चुराया या नहीं, उस मुराद ने ये जवाब दिया कि क्या वह घोड़े की सवारी करना चाहता है और यदि चाहता है तो तुरंत वहाँ से कूदकर बाहर आओ. आरम वॉज कन्विंस्ड that he had the horse was stolen by Murad. उसके इस जवाब को सुनकर आरम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है कि उसका जो भाई है, उसका जो कज़न है, उसने कहीं ना कहीं से ये घोड़ा चुराया है. He came to visit him to ask him to ride it with him. और इसलिए वो घोड़े चुराने के बाद उसे घोड़े की घुड़सवारी करने का निमंत्रण देने आया हुआ है. आरम tried to convince himself that it was not the same as stealing money as they both were so crazy about riding a horse. कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो गलत है तो हम कुछ एक्सक्यूजेस देते हैं कि चलो ऐसा होता है जनरली तो हम भी कर लिए तो क्या होगा. तो यहाँ पर मुराद जो है, आरम जो है सॉरी, वो यही बात को सोच रहा है कि अगर मान लो उसका जो कजन है उसने घोड़े को चुराया तो ये एक चोरी नहीं है, क्योंकि ये कोई पैसे की चोरी तो है नहीं. और उसका ये भी कहना है कि he thought that it would not be called stealing until they decide to sell it. उसका ये कहना है कि अगर हम कुछ चीज़ को चुरा के ले आते हैं तो ये चोरी तब तक नहीं कहलाएगा जब ये चोरी उसको बेचने के इरादे से की गई है. और उसका जो कजन है उसको तो घोड़े को तो बेचना नहीं है, वो तो केवल उसकी घुड़सवारी करना चाहता है, तो इसलिए एक चोरी नहीं है. और ये बात सोचकर वो अपने आप को कन्विंस करने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है. और इसका कारण ये है कि उसके अंदर भी घोड़े की घुड़सवारी करने की एक प्रबल इच्छा है. ओके, तो आरम सेड ही विल वियर सम क्लोथ्स एंड कम आउटसाइड. और आरम उसकी बात को सुनकर ये कहता है ठीक है कि मैं कपड़े पहनकर आता हूँ. ही जम्प डाउन टू हिज यार्ड फ्रॉम हिज रूम्स विंडो एंड सैट ऑन द हॉर्स बिहाइंड हिज कजन. कपड़े पहनने के बाद वो कूद कर आंगन में आता है और उसके बाद आकर अपने भाई के पीछे घोड़े पर बैठ जाता है. That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our horse was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. Every family has a crazy streak in it somewhere. And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. Before him was our uncle Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache
in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." This is the sentence which is spoken by him frequently at every occasion, you can say here. Vineyard, the meaning of this word is plantation of grape wines used in wine making. वाइनयार्ड का मतलब होता है कि अंगूरों की बड़े पैमाने पर खेती करना ताकि उससे फिर शराब बनाया जा सके. ऑर्चर्ड, ए पीस ऑफ लैंड ऑफ द प्लांटेशन ऑफ फ्रूट्स, यानी ज़मीन का वह टुकड़ा जहाँ पे जनरली फलों की खेती की जाती है. इरिगेशन डिचेस, मैन मेड चैनल यूज टू डिलीवर वाटर टू होम्स, इंडस्ट्री एंड अदर यूजेस. आप इसको कैनाल भी कह सकते हैं, जहाँ पर नदियों को जोड़कर वहाँ से वाटर का सप्लाई घर में, इंडस्ट्री में या खेतों में जनरली इरिगेशन के पर्पज से किया जाता है. और नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे ट्रॉट. ट्रॉट का मतलब है प्रोसीड विथ समथिंग, यानी किसी काम को करते हुए तेजी से आगे बढ़ना, दैट इज कॉल्ड ट्रॉट. एंड वन मोर वर्ड इज हेयर, डिसेंडेंट, a system that develops from an earlier simple version. In short, you can say descendant means उत्तराधिकारी. Higher you can say here. Streak means race, यानी जाति. Enormous, the next word is enormous and it means huge, बहुत बड़ा, विशाल. And the San Joaquin Valley, one of the long interior valleys of California, यानी कैलिफोर्निया में एक लंबी जो वैली है उसका नाम है सैन जैक्विन वैली. तो these are the words used in this paragraph, and I think these words were new for you. That's why I had given the meaning of this all here. Now see what the meaning of this paragraph actually. Aram lived at the edge of the town on Walnut Avenue. There were orchards, vineyards, irrigation ditches and country roads behind his house. यहाँ पर उसका घर जो है वो कंट्री साइड में है, और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, जिसमें ऑर्चर्ड है, वाइन यार्ड्स है, यानी मुख्य रूप से वो जगह जो है वो फलों के स्पेशली अंगूर की खेती के लिए यूज़ किया जा रहा है. और वहाँ पर इरिगेशन टीचर्स काफ़ी मात्रा में है, जहाँ पर पानी सप्लाई कर यहाँ पे इरिगेशन पर्पस से और घर को सप्लाई करने के पर्पस से किया जा रहा है. They were on Olive Avenue. Within 3 minutes and the horse started to proceed. 3 मिनट के अंदर उनका जो घोड़ा था वो Olive Avenue पहुंच गया था. The air felt new and lovely to breathe. चूँकि वो घोड़े पर सवारी कर रहे थे और खुली हवा में जब उन्होंने सांस लिया तो उन्हें लग रहा था कि हवा जो है वो आज बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ है, ऐसा उनको फील लग रहा था. और ये ऐसा इसलिए हो पा रहा था क्योंकि वे अंदर से दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थे. आरम फेल्ट वंडरफुल सिटिंग ऑन द हॉर्स विच वॉज रनिंग. मुराद स्टार्टेड सिंगिंग लाउडली, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. उसका जो कजन मुराद था वो घुड़सवारी करते करते अचानक से ज़ोर ज़ोर से गीत गाने लगता है. और यहाँ पर एक बात यहाँ पे कही गई है, एक्चुअली मुराद वॉज ए क्रेजी सॉर्ट ऑफ बॉय, और ही वॉज द डिसेंडेंट ऑफ अंकल खोरसो. देयर इज वन क्रेजी पर्सन इन एवरी फैमिली एंड मुराद वॉज वन ऑफ द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ ए क्रेजी रेस इन द ट्राइब. आरम का कहना है कि हर परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्रेजी यानी सनकी टाइप का होता है, यानी आप उसको कुछ भी कहो उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. और उसके फैमिली में भी ऐसे लोग हैं, उसमें एक तो ये कजन है और दूसरा जिसका कि ये डिसेंडेंट है. बिफोर मुराद वॉज अंकल खोरसो वॉज द वन ह्यूज मैन विद ब्लैक हेयर एंड लार्जेस्ट मुस्टिस इन द वैली. उनके जो अंकल हैं उसका जो अपीयरेंस बताया गया है, काफ़ी लंबे चौड़े व्यक्ति हैं, काले घने बाल हैं उनके और बड़ी बड़ी मूछें हैं. वो भी एक क्रेजी व्यक्ति हैं और ऐसा जान पड़ता है कि मुराद के अंदर जो गुण हैं वो हेरिडिटिकली वो अंकल खोरसो से उसको मिले हैं. ही हैड एन एनर्जेटिक टेम्पर एंड वॉज इम्पैशिएंट विच वॉज इरिटेटिंग. और ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत ज़्यादा
और इनका जो टेम्पर है एनर्जेटिक है, यानी तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, इम्पैशिएंट मीन्स अधीर हो जाते हैं, और इनका स्वभाव जो है वो एकदम इरिटेट हो जाता है, इरिटेटिंग करने वाला होता है। और हर बात को सुनने के बाद ही यूज टू मेक एनी वन स्टॉप टॉकिंग बाय रोरिंग एंड से, अगर उनके सामने कोई कुछ बात कहने की कोशिश करता है तो ये इरिटेट होकर तुरंत उसको रुकवा देते हैं और चिल्ला कर कहते हैं इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं है, इस पर कोई ध्यान मत दो। उनका ये तकिया कलाम है, आप कह सकते हो यहाँ पर। दैट वॉज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी talking about. Once it was his own son, Arak, running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on a fire. This man, Khosrow, sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khosrow roared, "Enough, it is no harm, I say." This is very funny. You can say here, my cousin Murad was considered the natural descendant of this man. Although Murad's father was Jorab, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. A very important line is this. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. We rode and my cousin Murad sang. For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors, we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. Two important words are there in this paragraph. You can see here the capricious means inconsistent change of mood. Inconsistent change of mood यानी मूड में अचानक से कोई बदलाव आ जाना, यानी जो कंसिस्टेंट नहीं है, यानी बार बार बदलाव आते रहना। एंड वैग्रेंट, ए पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम और वर्क, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो परमानेंटली एक जगह पे रहता नहीं है या उसका परमानेंटली कोई काम नहीं है, आप उसे वैग्रेंट कह सकते हैं। एंड कैप्रिसियस यानी उस व्यक्ति का मूड भी तुरंत तुरंत बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो नाउ सी व्हाट द पैराग्राफ टेल्स हियर। Uncle Khosrow was always this rigid, no matter who happened to be talking about in front of him. Once his own son, Arav, came running to him when he was getting his mustache trimmed at the barber shop. अंकल खुरसौब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे की बातों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो उनके सामने अगर कोई कुछ बातें कहना चाहता है तुरंत गुस्सा में आ जाते हैं। एक छोटी सी घटना का जिक्र यहाँ पर किया है। वंस हिज ओन सन आरव, उनका अपना बेटा आरव है, सॉरी यहाँ आरक होना चाहिए, दौड़ते हुए बार्बर के शॉप में आता है जहाँ पर वो अपने मूछों को ट्रिम करवा रहे होते हैं और कहता है ही टोल्ड हिम द हाउस वाज ऑन फायर, टू विच ही रोड एंड सेड द सेम डायलॉग। उनका बेटा कहता है उनके घर में आग लग गया है, लेकिन उनका जो यहाँ पर जो वो वर्ड यूज़ करते हैं हमेशा, पे नो अटेंशन टू इट, नो हार्म एट ऑल, तो वहाँ पर यही डायलॉग वो बोलते हैं कि आग लग गया तो क्या हो गया, कोई ध्यान मत दो, सब ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। बार्बर वॉज as amused and tried to talk to him about it, but as usual Khosrow roared again and he did not pay attention to it. वहाँ पे जो बार्बर है जो उनकी मूछों को ट्रिम कर रहा होता है, उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इनका बेटा कह रहा है कि घर में आग लग गया और ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, कोई ध्यान मत दो, सब ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। वो इस बात को उनको कह रहे हैं भाई आपके घर में आग लगा हुआ है, तो फिर उसको भी डांट के कहते हैं आग लगा हुआ तो क्या हो गया, कोई नुकसान नहीं है, कोई ध्यान मत दो। तो काफ़ी इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अंकल खुरसौब है इज़ अ वेरी फनी, वेरी क्रेजी सॉर्ट ऑफ मैन, और यही टेंडेंसी यहाँ पर मुराद के अंदर भी है। एंड दैट्स वाई द ऑथर कंपेयर्ड मुराद एज द डिसेंडेंट ऑफ अंकल खुरसौब। मुराद वॉज कंसिडर्ड टू बी ए नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, बट ही वॉज नॉट हिज सन। हालांकि मुराद जो है उसके अंदर ये जो गुण है वो अंकल खुरसौब के हैं, लेकिन वो अंकल खुरसौब का बेटा नहीं है, उनका भतीजा, यू कैन से हियर। इस फादर वो जोराब, उसके पिता तो जोराब हैं, हु वाज ए प्रैक्टिकल पर्सन, जो बहुत ही व्यवहारिक आदमी है। वो अंकल खुरसौब की तरह से मूडी नहीं है।
A child could look like his father, but does not mean he gets his nature and attitude just the same. ये सत्य है कि एक बच्चा अपने पिता की तरह दिख सकता है, पर यह कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर जो गुण है सारे के सारे वो उसके पिता के जैसे ही हों. There are different kinds of people in their tribes, moody and without any settled work or home. यानी उसके ट्राइब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी मुडी है, कोई काम नहीं है उनको. एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे अंकल खुसरो को ले सकते हैं. They were still riding the horse and Murad was still singing. घोड़ा तेजी से दौड़ता हुआ चला जा रहा है और मुराद जो है अभी भी जोर जोर से गीत गा रहा है. They were still in the countryside where according to their neighbors they belong to. और अब वो उस कंट्री साइड में पहुंच चुके हैं जहां पर उनके पड़ोसियों का कहना था कि वे जहां से बिलोंग करते थे. Now see the next part. At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." "Will you let me ride alone?" I asked. "That is up to the horse." My cousin said, "Get down. The horse will let me ride," I said. "We shall see," he said. "Don't forget that I have a way with a horse." "Well," I said, "anyway you have with a horse, I have also for the sake of your safety." He said, "Let us hope so. Get down." "All right," I said, "but remember, you have got to let me try to ride alone." I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazire, run." The horse stood on its hind legs, snorted, and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation and ditches, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. Two words used here may be important. Wazire. Actually, it is the name of the horse on which they were riding at that time, and this name was given to the author here, I think so here. And the next word is a fury. Fury means anchor. See what happens here actually. Murad asked him to get down as he wanted to ride along. अब जब वो लोग घुड़सवारी कर रहे थे तो काफ़ी समय के बाद अचानक से मुराद आरम से कहता है कि तुम उतर जाओ, अब मुझे अकेले घुड़सवारी करनी है. आरम आस्क्ड इफ ही कुड राइड द हॉर्स अलोन. तो आरम कहता है कि क्या वह भी अकेले घोड़े की घुड़सवारी कर सकता है. ही सेड, इट इज़ अप टू द हॉर्स, इफ ही वांट्स टू राइड यू अलोंग एंड आस्क हिम टू गेट. तो मुराद का ये कहना है कि ये तो भाई इस घोड़े पे डिपेंड करता है कि ये तुम्हें अकेले घुड़सवारी करने देगा या नहीं करने देगा. और वो फिर से कहता है आरम को कि वो घोड़े से नीचे उतर जाए. आरम ट्राई टू कन्विंस हिम दैट द हॉर्स वुड लेट हिम राइड, टू विच मुराद सेड दैट वी शैल सी, एंड टोल्ड आरम दैट ही हैड अ वे विथ अ हॉर्स. आरम यहाँ पे उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम मुझे एक मौका तो दो, घोड़ा तो मुझे घुड़सवारी करने देगा ही. तो उसकी बात को सुनकर मुराद कहता है कि ठीक है अभी तुम उतर जाओ, चलो बाद में देखेंगे क्या होता है. वैसे मेरे पास तो घोड़े के साथ कैसे ट्रीट करना है इसका रास्ता मुझे पता है, आइडिया है, बट पता नहीं तुम्हें है कि नहीं. आरम टोल्ड हिम दैट ही हैड इट टू. तो आरम कहता है कि उसे भी आइडिया है कि घोड़े के साथ कैसे ट्रीट करना है. मुराद टोल्ड हिम टू गेट डाउन एंड सेड इट इज़ फॉर हिज ओन सेफ्टी. मुराद कहता है कि अरे भाई मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ, चलो अभी तुम उतर जाओ. लेट अस होप सो. तो आरम कहता है चलो ठीक है, मेरी भी यही उम्मीद है. आरम गॉट डाउन वाइल टेलिंग हिम दैट ही विल राइड द हॉर्स अलोन. यह कहते हुए कि वो भी घोड़े की घुड़सवारी अकेले करेगा, वो घोड़े से नीचे उतरता है. मुराद किक्ड हिज हील्स इन द हॉर्स एंड शाउटेड रन टू हिम. और जैसे वो नीचे उतरता है मुराद अपने एड़ी से घोड़े को किक करता है और उसे चिल्लाकर आगे बढ़ने के लिए कहता है. द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स. उसकी बात को सुनकर घोड़ा अपने हाइंड लेग पे खड़ा हो गया, ब्रीथ्ड आउट, जोर से सांस लिया, एंड रैन इनटू ए स्पीड, और तेजी से दौड़कर आगे बढ़ गया. मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास एंड इरिगेशन डिचेस. व्हेन दे अराइव्ड 5 minutes later they were wet. और मुराद तेजी से
ड्राई ग्रास के खेतों को पार करता हुआ, इरिगेशन डिचेस को पार करता हुआ जब वो लौटता है 5 मिनट के बाद, तो वे भीगे हुए होते हैं। Now the sun was coming up. Now it's my turn to ride, I said. My cousin Murad got up the horse. Ride, he said. I leaped to the back of the horse for a moment, knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. Kick into his muscles. My cousin Murad said, "What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about." I kicked into the muscles of the horse. Once again, it reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dukran Holmian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. My cousin came running down the road. "I'm not worried about you," he shouted. "We have got to get that horse. You go this way and I will go this way. If you come upon him, be kindly, I will be near." See, 2 words, important words are there. The first one is reared. Reared means raised, ऊपर उठना. Snorted, breathed out, यानी चिंघाड़ते हुए आगे बढ़ना, हिनहिनाते हुए आगे बढ़ना. दैट इज कॉल्ड स्नोटिंग हेयर. द सन वॉज ऑलमोस्ट अप एंड आरम टोल्ड हिम इट वॉज हिज टर्न टू राइड. सूर्य धीरे धीरे ऊपर की ओर निकल रहा था और अब आरम मुराद से कहता है कि अब उसकी बारी है और वो उसको घुड़सवारी करने के लिए उसको देना चाहिए मौका. मुराद गॉट ऑफ एंड आरम सैट ऑन द हॉर्स. उसकी बात को सुनकर मुराद नीचे उतर गया और आरम घोड़े पर बैठ गया. ही वॉज फियरफुल एंड द हॉर्स डिड नॉट मूव. वो काफी डरा हुआ था, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा. मुराद ट्राइड टू गाइड हिम बाय सेइंग दैट ही शुड ट्राई टू किक इनटू हिज मसल्स and told him that he should hurry because they need to take him back before everyone woke up. मुराद उसे समझाता है कि घोड़ा ये ऐसे आगे बढ़ेगा नहीं, ऐसा करो तुम इसके मसल्स को किक करो और जल्दी से लौट के आना क्योंकि सूर्य निकलने वाला है और इससे पहले कि लोग जाग जाएं हमें इसे कहीं ना कहीं छुपा कर रखना होगा. आरम किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स टू विच द हॉर्स अगेन रेज्ड एंड ब्रीथ आउट. उसकी बात को सुनकर आरम घोड़े को किक किया और घोड़ा एक बार फिर से स्नोटिंग करते हुए आगे की ओर मूव कर जाता है. द हॉर्स बिगेन टू रन एंड आरम डिड नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. घोड़ा जब आगे बढ़ा तो अब आरम को यह पता नहीं था कि उसे आगे क्या करना था. द हॉर्स स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द रोड दैट लीड्स टू द वाइनयार्ड्स ऑफ डेक्रन हैलेबियन. घोड़ा उस ओर, रोड से होते हुए उस ओर दौड़ जाता है जिधर की वाइन यार्ड था, यानी उसको उधर जाना नहीं था लेकिन घोड़ा उधर दौड़ के चला जाता है. इट बिगेन टू मूव ओवर वाइन्स एंड आरम फेल डाउन. और वो अंगूर के लतरों के ऊपर से होता हुआ जंप करता हुआ दौड़ने लगता है और इसके वजह से आरम घोड़े पर से गिर गया. द हॉर्स कंटिन्यू टू रन एंड मुराद केम रनिंग डाउन द रोड टुवर्ड्स हिम. और घोड़ा दौड़ते हुए आगे चला गया. मुराद दौड़ के वहाँ आता है और जब वो देखता है कि उसका जो कजन आरम हो वो गिर चुका है, मुराद टोल्ड हिम दैट ही इज़ नॉट वरीड अबाउट हिम. मुराद वहाँ पे आया और बोला वो उसके लिए चिंतित नहीं है, बट दे नीड टू फाइंड द हॉर्स. उसे तो किसी भी कीमत पर उस घोड़े को ढूंढना है. दे बोथ वेंट डिफरेंट वेज टू फाइंड हिम. और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए घोड़े को ढूंढने के लिए. ही इंस्ट्रक्टेड आरम टू बी काइंड इफ ही सॉ हिम एनीवेयर. वो आरम को इंस्ट्रक्शन दिया कि देखो जहाँ भी तुमको वो दिखाई पड़े तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना. आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कजन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरिगेशन डिच. और मैं खोजने के लिए आगे बढ़ गया रोड की तरफ और मेरा कजन मुराद जिधर इरिगेशन डिच थे उधर की ओर बढ़ गया. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक. और लगभग उसको आधे घंटे लगे घोड़े को ढूंढने में और वापस लेकर आने में. All right, he said, jump on. The whole world is awake now.
What will we do? I said. Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. He didn't sound worried, and I knew he had hide him and not take him back. Not for a while, at any rate. Where will we hide him? I said. I know a place, he said. How long ago did you steal this horse? I said. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Dawn is the word here, which means appeared, prakat hona. Now see the meaning of this paragraph. Aram looked for the horse down the road and Murad went towards the irrigation ditch. यानी दोनों खोजने के लिए चले जाते हैं, आरम रोड की तरफ और मुराद जो है वो डिच की तरफ. He came back after 30 minutes with the horse. और वो 30 मिनट के बाद, लगभग आधे घंटे के बाद घोड़े को लेकर आया. He told him to jump over as the whole world was awake by then. तब वो अपने कज़न को बोला कि जल्दी से जंप करके बैठ जाओ, बिकॉज पूरी दुनिया जाग चुकी है. आरम asked what would they do now, to which Murad told him about two options. आरम ने उससे पूछा कि अब उन्हें क्या करना है, तो मुराद ने यहाँ पे उसे दो ऑप्शन दिए. फर्स्ट, टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो. या तो उसे वापस ले जाएं और सुबह तक के लिए छुपा दें. मुराद वॉज नॉट वरीड एंड आरम न्यू दैट मुराद वुड हाइड हिम समवेयर एंड नॉट टेक हिम बैक फॉर अ वाइल. और मुराद के चेहरे पे चिंता के कोई भी भाव दिखाई नहीं पड़ रहे थे. आरम को ये पता था कि उसका जो कज़न है मुराद, वो उसे पता है कि घोड़े को कहाँ पे छिपाना है, तो वो उसे वापस लेकर तो नहीं जाएगा. आरम आस्क्ड हिम वेयर मुराद वुड हाइड हिम. मुराद टोल्ड हिम अबाउट अ प्लेस ही न्यू विच वुड बी परफेक्ट एज अ हिडन स्पॉट. आरम ने उससे पूछा कि वह उसे कहाँ छुपाएगा, तो मुराद ने कहा उसे पता है एक जगह जो परफेक्ट प्लेस है उसको छुपाने के लिए, और उसे कोई उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा. आरम ईगरली आस्क हिम व्हेन ही स्टोल द हॉर्स. उसके बाद आरम उससे बहुत एक्साइटेड होकर पूछता है कि आखिर उसने उस घोड़े को चुराया कहाँ से. It appeared to him that Murad had been taking the horse for morning rides for quite some time and he showed up this morning to ask. उसको ऐसा महसूस हुआ कि मुराद ने इस घोड़े को कुछ दिन पहले ही चुरा लिया था और वो अकेले कुछ दिनों से उसकी घुड़सवारी कर रहा था, और आज उसको बोलने आया है पहली बार कि उसको वो भी उसके साथ घुड़सवारी करे. यानी घोड़ा जो था वो मुराद के द्वारा कुछ दिनों पहले ही चुरा लिया गया था, ऐसा आरम को महसूस होता है. आरम टू राइड अलोंग बिकॉज ही न्यू ही वॉज लॉन्गिंग टू राइड वन. और वो आरम के पास घोड़े को लेकर इसलिए आया क्योंकि मुराद को पता था कि उसका कजन की भी बहुत इच्छा है कि वो घोड़े की घुड़सवारी कर सके. इसलिए Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. All right, I said. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fatwazian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first, it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can't get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. One important word is here, alfalfa, a flowering plant. It is a kind of plant, okay, which is mentioned in this paragraph here. Now what happens actually? Take a look here. Murad shuts him down by asking a counter question about who talks about stealing a horse. Aram tried to change the question by asking him since how long was he riding the horse every morning. जब आरम ने उससे क्वेश्चन पूछा था कि आखिर उसने इस घोड़े को कब चुराया, तो मुराद
एक काउंटर क्वेश्चन करके कि हु टॉक्स अबाउट स्टीलिंग हॉर्स, कौन चुराए हुए घोड़े की बात करता है, उसको शांत करवा दिया। और तब उसकी इस बात को सुनकर आरम ट्राई टू चेंज द क्वेश्चन, और तब आरम ने अपने क्वेश्चन को चेंज करने की कोशिश की बाय आस्किंग हिम सिंस हाउ लॉन्ग वाज ही राइडिंग द हॉर्स एवरी मॉर्निंग, कि वह उस घोड़े की घुड़सवारी कब से कर रहा था। मुराद टोल्ड हिम दैट मॉर्निंग वाज द फर्स्ट टाइम, लेकिन मुराद उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं पहले नहीं कर रहा था, आज ये पहला सुबह है जब मैं इसकी घुड़सवारी कर रहा हूँ। आरम वॉज नॉट कन्विंस्ड, हालांकि आरम उसकी बात को सुनकर आश्वस्त नहीं होता है। एंड आस्क हिम इफ ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ, और उससे पूछा कि क्या वह सच कह रहा था। मुराद सेड इट एनीवन आस्क आरम ही शुड से दैट इट वॉज ट्रू। वो मुराद कहता है कि अगर उससे कोई भी ये बात पूछे तो उसको यही कहना चाहिए कि ये सही था। He further added that he did not want them to be liars, but they had to say only this. फिर बाद में अपने कजन को समझाता है कि देखो कि मैं नहीं ये चाहता कि कोई हमें झूठा कहे, लेकिन अभी तो फिलहाल हमें ऐसा कहना ही पड़ेगा। आरम एग्रीड एंड मुराद वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टुवर्ड्स द बार्न ऑफ ए डिजर्टेड वाइन यार्ड। आरम उसकी बात से सहमत हो गया और बोला कि चलो अच्छा है, क्योंकि उसकी भी तो इच्छा यही थी कि वो भी घुड़सवारी सीख सके। और तब मुराद दोनों आगे बढ़ते हैं और जाकर एक वाइन यार्ड था, डिजर्टेड था, मीन्स अब वहाँ पे कोई भी क्रॉपिंग्स नहीं हो रही थी, कोई वहाँ आता जाता नहीं था, डिजर्टेड था वो प्लेस, सुनसान था। वहाँ पे वे दोनों गए। इट बिलोंग टू ए फार्मर नेम्ड फैटविजान, एक्चुअली एक किसान जिसका नाम फैटविजान था, उसका ये फार्म हाउस था। द बार्न हैड सम ओट्स एंड अल्फाल्फा, हालांकि अभी भी वहाँ कुछ प्लांट्स जो थे वो लगे हुए थे। दे स्टार्टेड वॉकिंग होम, और घोड़े को वहाँ छिपाने के बाद दोनों वापस घर की ओर चल पड़े। मुराद टोल्ड आरम दैट इट वॉज नॉट ईजी टू गेट द हॉर्स टू बिहेव नाइसली एज इट वांटेड टू रन वाइल्ड एट फर्स्ट। और मुराद आरम को ये समझाया यहाँ पर कि जब घोड़ा एक बार दौड़ना शुरू कर दे तो उस घोड़े को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं है, वो भी जब फर्स्ट टाइम आप उसको दौड़ा रहे हो। He told him again that he had a way with a horse, और तब उसने उससे फिर से वहाँ ये पे कहा कि उसे तो आइडिया है कि घोड़े के साथ कैसे ट्रीट करना है। एंड ही कुड गेट देम टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, और वो तो उस घोड़े को जहाँ मर्जी वहाँ तक दौड़ा सकता है, जहाँ तक ले जा सकता है। हॉर्सेस अंडरस्टूड हिम, क्योंकि घोड़े उसे समझते हैं। यानी यहाँ पर मुराद आरम को ये बताने की कोशिश करता है कि वह काफ़ी स्मार्ट है और उसे घोड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उसे कंट्रोल करना है, उसकी जानकारी उसे है। बट आरम को उसकी जानकारी नहीं है, और इसलिए वो घोड़े की घुड़सवारी अकेले नहीं कर सकता, और इसलिए वो वहाँ पे गिर पड़ा था। वो अपनी सुपरियरिटी यहाँ पर साबित करने की कोशिश करता है। हाउ डू यू डू इट, आई सेड। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ ए हॉर्स, ही सेड। Yes, but what sort of an understanding, I said. A simple and honest one, he said. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. You're still a small boy, he said. When you get to be 13, you all know how to do it. I went home and ate a hearty breakfast. That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who, out of the loneliness, had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, my white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. My uncle Khosrow became very irritated and shouted, it's no harm. What is the loss of a horse? Have not we all lost the homeland? What is this crying over a horse? See, parlor word is used here. Parlor means a sitting space in a house. See what actually happens in this paragraph. Aram amusingly asked him how he controlled the horse, which Murad said he has an understanding with the horse.
आरम आश्चर्यचकित होकर जब मुराद से ये पूछा कि आखिर वो घोड़ों के साथ कैसे ये ट्रीट कर लेता है। मुराद का जवाब ये था कि उसे घोड़ों के साथ अंडरस्टैंडिंग आती है करना। आरम आस्क्ड हिम व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिड ही हैव विद हिम, टू विच मुराद टोल्ड हिम। वो मुराद से पूछा कि आखिर किस तरह की अंडरस्टैंडिंग उसके पास है जो वो उसकी बात वो उसने कही है अभी यहाँ पर। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, बोला एक बहुत ही साधारण परंतु ईमानदार। आरम कन्फेस्ड ही वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ ए हॉर्स। और आरम यहाँ पे कन्फेस किया कि उसे भी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग चाहिए ताकि वो उस घोड़े की घुड़सवारी अच्छी तरह कर सके। मुराद assumed आरम by saying that he is still a small boy, he will learn when he will be 13। और उसकी इस बात को सुनकर मुराद बोला कि अभी वो बहुत छोटा है, मात्र 13 साल का है, जब वो बड़ा होगा तो उसे ये बात समझ में आएगी कि कैसे एक घोड़े को कंट्रोल किया जाता है। आरम went home and ate breakfast. That day, his uncle Khosrow visited his house for coffee and cigarette. He sat in the parlor and was remembering the old country when a person came to visit him. और उस दिन अंकल खोसरो वहाँ पे आए थे, बैठ के कॉफ़ी के साथ सिगरेट पी रहे थे और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। तभी एक आदमी वहाँ पे आया। He was John Byro, a farmer who learned to speak Armenian because of loneliness। और वो व्यक्ति जो था वो अकेलेपन के कारण अर्मेनियन भाषा बोलना सीख चुका था। His mother bought Byro some coffee and tobacco। और आरम की माँ जो है उसके लिए कुछ कॉफ़ी और टोबैको लेकर आई। एंड टोल्ड देम अबाउट हिज मिसिंग वाइट हॉर्स, ही सिप्ड एंड स्मोक्ड। उस व्यक्ति ने कॉफ़ी की चुस्की ली और सिगरेट का धुआं सिगरेट यहाँ पे जो टोबैको था उसको स्मोक करते हुए बोला अबाउट हिज मिसिंग वाइट हॉर्स हु वाज स्टोलन लास्ट मंथ एंड इज़ नॉट एबल टू फाइंड इट। उसने ये बात कही कि उसका एक घोड़ा था जो पिछले महीने चोरी हो गया है और वो अभी तक उसको ढूंढ नहीं पाया है एक्चुअली में। Khosrow roared again, that is no harm, and shouted that why he was crying over a lost horse when they had lost their homeland। उसकी इस बात को सुनकर खोसरो बहुत गुस्सा होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, बोलते तो क्या हो गया, उन्होंने भी बहुत सारे जमीन अपने खोए हैं, उनका घर खोया है, तो एक घोड़ा खो गया तो कौन सा बहुत बड़ा मुसीबत आ गई। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said, but what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? Pay no attention to it, my uncle Khosrow roared. I walked 10 miles to get here, John Byro said. You have legs, my uncle Khosrow shouted. My left leg pains me, the farmer said. Pay no attention to it, my uncle Khosrow roared. That horse cost me $60, the farmer said. I spite on money, my uncle Khosrow said. He got up and stalked out of the horse, slamming the screen door. My mother explained. He has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. He was sitting under a peach tree, trying to repair the hurt or wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. What is it? He said. The farmer John Byro, I said. He visited our house. He wants to his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. See, two words are there here. City dweller, a person who lives in a city, and Surrey, a country in southeast England. Okay. What happens actually here? See. John replied to Khosrow that he would not bother as he lives in a city, but his country was of no good without his horse. जॉन बैरो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं क्योंकि वो शहर में रहता है, लेकिन जहाँ पे वो रहता है वहाँ पर बिना घोड़े के कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। Khosrow shouted that he must not pay attention to it। और जैसा मैंने आप लोग से पहले कहा कि Khosrow तो थोड़ा सा सनकी है, वो चिल्ला के कहता है तो क्या हो गया, कोई ध्यान मत दो। John told him that he walked down 10 miles to come here। तो उसकी बात को सुनकर जॉन कहता है कि वो 10 मील की दूरी तय करके वहाँ पे आया था। Khosrow shouted that he has legs, to which John said his left leg hurt। Khosrow कहता है तो क्या हो गया, तुम्हारे पैर तो हैं। तो उसकी बात को सुनकर जॉन बैरो कहता है लेकिन उसके बाएं पैर में इंजरी है, दर्द हो रहा है। Khosrow again tried to shut him down by saying that he should not pay any attention to it। जब वो अपने पाँव के दर्द की बात कहता है तो फिर से Khosrow उसको डांटते हैं, कहते हैं इस पर कोई ध्यान मत दो, कोई नुकसान नहीं है। John said that the horse cost him $60।
जॉन कहता है उसके घोड़े की कीमत $60 थी। खॉर्सो सेड ही वुड स्पाइट ऑन द मनी आफ्टर स्पाइट ऑन द मनी। उसकी बात को सुनकर खॉर्सो चिल्लाते हैं कि मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे पर। और इसको सुनकर जॉन गॉट अप एंड वेंट अवे स्लैमिंग द डोर। जॉन खड़ा हो गया और दरवाजा को पटकते हुए वहां से चला गया। Aram's mother told him that John had a gentle heart as he was homesick and he was such a large man. उसके जाने के बाद आरम की माँ कहती है ऐसे जॉन बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन बेचारा होम सिक है, अकेला रहता है, तो इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। Aram went to Murad. He was sitting under a peach tree talking to a robin bird. ये सारी बातों को सुनने के बाद आरम दौड़कर अपने कजिन मुराद के पास जाता है, जो उस समय एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था और एक रॉबिन बर्ड उसके हाथ में था। ही वॉज रिपेयरिंग द विंग दैट वॉज हर्ट। रॉबिन पक्षी के पंख में कुछ चोटें आई थी, जिससे वो मरहम कर रहा था, ठीक कर रहा था। आरम टोल्ड हिम अबाउट जॉन बायरो एंड हाउ ही विजिटेड देयर हाउस एंड ही वांटेड हिज हॉर्स। उसने जाकर ये सारी बातें बताई कि कैसे जॉन बायरो वहाँ आया था और कैसे वो उसकी बातों को सुना और उसे बताने के लिए आया है। आरम आस्क हिम नॉट टू रिटर्न द हॉर्स अंटिल ही लर्न्स टू राइड इट। आरम उससे कहता है कि देखो, चाहे जो भी हो, तुम उस घोड़े को लौटाना मत जब तक कि मैं उसे घुड़सवारी करना सीख नहीं लेता हूँ। It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. We could keep the horse a year, I said. My cousin Murad leaped to his feet. What? He roared. Are you inviting a member of the Gregorian family to steal? The horse must go back to his true honor. When I said, in 6 months at the latest, he said. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away, high and straight. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in no time to learn to ride the way my cousin Murad rode. One morning on the way to Fedjiwan's deserted vineyards, we ran into the farmer John Bairo, who was on his way to town. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. Murad told Aram that it will take him a whole year to learn to ride a horse. वहाँ पे आरम जो है वो रिक्वेस्ट किया अपने भाई से कि भाई जब तक मैं ये सीख नहीं लेता तुम घोड़े को वापस मत करना। मुराद ये कहते हुए उसका मजाक उड़ाया, तुमको तो 1 साल लगेगा घोड़े की घुड़सवारी सीखने में। आरम सेड दे कुड कीप हिम फॉर अ ईयर देन। तो आरम बोला तब तो हम लोग उसको 1 साल रखेंगे। मुराद स्टूड अप ऑन हिज फीट एंड शाउटेड एट हिम अबाउट encouraging him to be a thief in spite of being a member of the Gregorian family. उसकी इस बात को सुनकर आरम गुस्सा गया और खड़ा होकर चिल्ला के बोला कि तुम एक गेरगोलियन फैमिली के मेंबर को चोरी करना सिखा रहे हो। He declared that the horse should go to his true honor. और बोला कि घोड़े को तो उसके असली मालिक के पास जाना चाहिए। आरम asked, when would they have to return the horse, to which Murad said in 6 months. तो आरम उससे पूछा कि अच्छा हम लोग कब घोड़े को वापस कर रहे हैं। तो मुराद बोला लगभग यही 6 महीने में वापस कर देंगे। He threw the bird into the air. It almost fell twice but flew at last. और ये बोल के आरम ने उस पक्षी को हवा में उड़ा दिया। हालांकि पक्षी 2 बार नीचे गिरा, लेकिन अंततः वो उड़ गया। For the next 2 weeks, they both would take the horse out of the barn and ride it. अगले 2 सप्ताह तक दोनों रोज इसको लेकर गए सुबह सुबह और इसकी घुड़सवारी की। But every morning the horse would throw Aram and run away where he tried to ride it. लेकिन हर सुबह जब भी आरम अकेले कोशिश करता था घोड़े को दौड़ाने की, वो हर बार घोड़े से गिर जाता था। He still hoped he would learn to ride it the way his cousin did. लेकिन अभी भी उसको ये उम्मीद थी कि जिस तरह से उसका कजन मुराद घुड़सवारी करता है वो भी एक दिन ऐसा कर पाएगा। Once on the way to the deserted vineyard to hide the horse again, they met John Bairo, who was on his way to town. एक दिन जब वो लोग घोड़े को दौड़ा के वापस छुपाने के लिए लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें जॉन बायरो मिला। मुराद insisted on talking to him as he had a way with farmers. और मुराद ने ये कहा कि उसे किसानों से कैसे बात करना है उसे आता है, इसलिए वो उससे बात करेगा। Now, good morning, John Bairo, my cousin Murad said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. Good morning, son of my friends, he said. What is the name of your horse? My heart,
My cousin Murad said in Armenian. A lovely name, John Byro said. For a lovely horse, I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? Of course, Murad said. The farmer looked into the mouth of the horse. Tooth for tooth, he said. I would swear it is my horse. If I didn't know your parents, the fame of your family for honesty is well known to me. And the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. Murad wished him good morning and Byro saw the horse carefully. Byro wished them back and asked the name of the horse. मुराद ने उसे विश किया, गुड मॉर्निंग बोला. बायरो ने जब घोड़े को देखा सावधानी से तो उसने पहले उस घोड़े का नाम पूछा. मुराद ने जवाब दिया, माई हार्ट इन आर्मेनियन लैंग्वेज. आर्मेनियन लैंग्वेज में ही मुराद ने जवाब दिया कि उसके घोड़े का नाम माई हार्ट है. बायरो कॉम्प्लीमेंटेड दैट इट वॉज अ लवली नेम. बायरो ने उसकी बात को सुनकर सराहना की, कहा कि ये बहुत ही प्यारा नाम है और फॉर ए लवली हॉर्स, जितना सुंदर घोड़ा है उतना अच्छा ही इसका नाम है. He swore that it was his horse that was stolen a week ago. उसने कसम खाते हुए ये कहा कि ये घोड़ा बिल्कुल वैसा ही है जैसा 2 सप्ताह पहले कुछ वीक पहले उसका ये घोड़ा जैसा चोरी हुआ था, उस तरह का. He asked if he could look into his mouth. उसने पूछा कि क्या हुआ उसके मुंह में झांक कर देख सकता था. After looking from the tooth, it said it was his horse if he did not know his parents. उसके मुंह को टीथ बाय टीथ मतलब हर एक दांत को गिनने के बाद उसने कहा कि वो उसे पूरा भरोसा था कि वह कह सकता था ये घोड़ा उसी का है, अगर वो ये नहीं जानता होता कि उसके पेरेंट्स कौन हैं. He said to the horse was a twin of his horse. और चूंकि उसको इतना भरोसा था उनके फैमिली के ऊपर कि उसने कहा लगता है कि ये जो घोड़ा है मेरे घोड़े का ट्विन है, एकदम जुड़वा है. He further said that his family is all for honesty, but the horse looked just like the one he lost. उसने कहा कि उसके परिवार की ईमानदारी पे वो शक नहीं कर सकता, लेकिन वो जो घोड़ा था बिल्कुल उसके ही घोड़े जैसा दिखाई पड़ रहा था. A man who is suspicious would easily believe his eyes and not his heart. He wished them and went eyes. उसने कहा कि कोई अगर सस्पिशियस आदमी होगा तो वो अपनी आंखों पर भरोसा करेगा, ना कि अपने दिल पर. और उसके बाद वो उनको विश करके वहां से चला गया. गुड डे जॉन बायरो, माय कजन मुराद सेड. अब यहाँ पर आगे की कहानी. जॉन बायरो को देखने के बाद मुराद ने उसे विश किया और अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. The dog I whispered to my cousin Murad, I thought they would bark. They would at somebody else. He said, I have a way with dogs. My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. I don't know what to think, he said. The horse is stronger than ever. Better tempered too. I thank God. My uncle Khorso, who was in the parlor, became irritated and shouted, Quiet, man, quiet. Your horse has been returned. Pay no attention to it. Murad wished him back the next morning. They took the horse back to John Byro's vineyard and put it in his barn. The dog followed them around without making any sound. Murad replied they would not bark at them since he had a way with dogs. उस मुलाकात के बाद मुराद ने ये निश्चय किया कि वो उस घोड़े को वापस कर देगा और अगले सुबह वह उसे जॉन बायरो के वाइनयार्ड में से लेकर जॉन बायरो के वाइनयार्ड में पहुंचा देता है. और वहाँ कुछ कुत्ते होते हैं. आरम को ऐसा लगता है कुत्ते उस पर भौंकेंगे, लेकिन मुराद कहता है कि उसे कुत्तों से कैसे डील करना है पता है. और ऐसा बोलने के बाद वह मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, वो घोड़े के बाँ में अपने गले में गर्दन में अपना हाथ बाँ को डालता है. देन प्रेस्ड हिज नोज, उसके नाक को दबाया. इनटू द हॉर्स नोज ही पैटेड हिम एंड देन वेंट अवे. और उसको नाक दबाने के बाद कुछ कहता है और वहाँ से फिर वे लोग चल पड़े. दैट सेम आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आरम्स हाउस इन हिज सरी एंड शोड हिज मदर हिज हॉर्स दैट रिटर्न. और अगले दिन
जॉन बैरो, तो सॉरी सेम आफ्टरनून, उसी दिन दोपहर को जॉन बैरो जो है वो अपने सरी आर्म्स हाउस इन सरी वो वहाँ पे आता है और उसकी माँ से कहता है कि उसका जो घोड़ा है वो वापस आ चुका है। ही सेड ही डिडंट नो व्हाट टू थिंक एज द हॉर्स इज मच स्ट्रॉन्गर नाउ विथ अ बेटर टेम्पर। और वो ये भी बताता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या सोचे, क्योंकि उसका जो घोड़ा है वो पहले से ज़्यादा अच्छा, मजबूत और बेस्ट टेम्पर का हो चुका है। ही थैंक गॉड, उसने गॉड को धन्यवाद दिया कि भगवान ने उसके घोड़े को सही सलामत उसे वापस कर दिया। अंकल खोरसो हु वॉज इन द पार्लर अगेन साउटेड इरिटेटेड। अंकल खोरसो वहीं पे बैठे हुए थे और उन्होंने जब सुना कि जॉन बैरो काफ़ी बातें कर रहा है तो फिर से उनको गुस्सा आ गया और वो फिर से चिल्ला के बोले यहाँ पर, क्वाइट मैन क्वाइट, अरे भाई चुप रहो, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा आ चुका है, पे नो अटेंशन टू इट, अब इस पर कोई ध्यान मत दो। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो कहानी का एंडिंग था वो फिर से एक बार ह्यूमरस हो गया और जॉन बैरो के फनी जो यहाँ पे जो लाइंस हैं उसको ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वो एक क्रेजी सॉर्ट ऑफ मैन है। तो इनफैक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं इस स्टोरी को। इन शॉर्ट मैं एक बार फिर से स्टोरी को जल्दी से बता दूं। इस कहानी में यही बताया गया है कि यहाँ पे आरम और मुराद नाम के दो कज़न हैं और दोनों के दोनों काफ़ी इंटरेस्टेड हैं हॉर्स राइडिंग में। और एक सुबह जब आरम सोया हुआ था, उसका भाई वहाँ आया और नॉक किया, चिल्लाया कि उठो उठो। जब वो जगता है तो सामने एक बहुत ही खूबसूरत घोड़े के साथ अपने भाई को देखता है। उसे भरोसा नहीं होता है कि उसका भाई ये घोड़ा कहाँ से लाया, क्योंकि उसको तो पता है कि उसके भाई के पास इतना पैसा है ही नहीं, कजिन के पास इतना पैसा है ही नहीं और वो चोरी कर नहीं सकता, तो फिर घोड़ा आया कहाँ से। लेकिन फिर भी उसके मन में ये डाउट होता है कि शायद उसके कजिन ने कहीं से इसे चुराया हो और वो काफ़ी क्वेश्चन भी करता है। बट मुराद क्वेश्चन का आंसर देने के बजाय उससे कहता है कि भाई अगर तुम्हें राइडिंग करना है तो चुपचाप मेरे साथ आओ, क्वेश्चन मत पूछो। और चूंकि आरम की भी इच्छा थी घोड़े की घुड़सवारी करने की, तो वो कपड़े पहनकर वापस आ जाता है। फिर दोनों घोड़े को घुड़सवारी करते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं मोमेंट को। इस बीच आरम मुराद घोड़े को अकेले राइडिंग भी करता है और आरम भी राइडिंग करने की बात रखता है। तो मुराद कहता है कि पता नहीं इसे ये पता है कि नहीं घोड़े के साथ डीलिंग कैसे करना है, तो हो सकता है वो गिर जाए। आरम नहीं मानता है और कोशिश करता है बट वो गिर जाता है। और तब अल्टीमेटली मुराद उसको ये समझाता है कि वो अभी बहुत छोटा है और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसे ये पता चल जाएगा कि कैसे जानवरों के साथ डील करते हैं और तब वो भी उसके सामान ही घोड़े को दौड़ा पाएगा। यहाँ पे मुराद एक सन की लड़के की तरह से ट्रीट किया गया है और वो कहा गया कि उसके फैमिली में उसके अंकल हैं खुरसो, जो वो भी काफ़ी सन की हैं और वो हर बात को सुनकर एक ही बात कहते हैं, पे नो अटेंशन टू इट और इट इज़ नो हार्म एट ऑल। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि मुराद के अंदर भी वो सारे गुण हैं जो खुसरो के अंदर हैं और काफ़ी दिनों तक वो घोड़े को यूज़ करते हैं। हर दिन जब आरम कोशिश करता है घोड़े को दौड़ाने की तो वो गिर जाता है, दौड़ा नहीं पाता है अपने कज़न की तरह से। इस बीच एक घटना घटती है, घोड़े का जो असली मालिक था वो उसके घर आ जाता है और उसकी माँ से अपनी बातों को कहता है कि उसका एक बहुत ही प्यारा घोड़ा था और अब वो घोड़ा मिल नहीं रहा है, वो बड़ा परेशान है। तो उसे भी बहुत इरिटेट करता है ये जो अंकल खुरसोम है, बोलकर डांटकर अपने बातों को। और ये बात जब आरम सुनता है तो ये बात जाके मुराद को बताता है। मुराद उसकी बात को कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन उसकी बात को सुनने के बाद भी 2 हफ्ते तक ये दोनों घोड़े को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से वो जॉन बैरो रास्ते में मिल जाता है इन दोनों को। मुराद उन्हें कहता है कि उसका घोड़ा है। जॉन बैरो के पूछे जाने पर कि उसका नाम क्या है, वो माई हर्ड बताता है। लेकिन उसके दांत को गिनने के बाद जॉन बैरो को ऐसा लगता है कि ये घोड़ा शायद उसका ही है। लेकिन चूंकि वो दोनों ऐसे फैमिली, ऐसे ट्राइब को बिलोंग करते थे जिसके ईमानदारी की कस्में खाई जाती थी, तो वो ब्लेम नहीं कर पाता है और उदास होकर वहाँ से चला जाता है। और इस इंसिडेंट ने इन दोनों के हार्ट को थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको झकझोरता है, जिसके वजह से ये डिसाइड करते हैं कि घोड़े को अब अल्टीमेटली वापस कर देना चाहिए। और अल्टीमेटली वे दोनों इस घोड़े को वापस कर देते हैं जाकर। और जब घोड़ा वापस मिल जाता है जॉन बैरो को, तो ये बात बताने के लिए आरम के घर फिर से आता है कि उसका घोड़ा जो है वो मिल चुका है और काफ़ी खुश है, क्योंकि उसका घोड़ा पहले से और ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और वेल टेम्पर्ड भी हो गया है। अंकल खुसरो वहीं पे रहते हैं, उसकी बात को सुनकर फिर से गुस्सा जाते हैं, कहते हैं कि इस पर कोई ध्यान मत दो, तुम्हारा घोड़ा मिल गया ना,
चलो अब ठीक है, और इस तरह से कहानी एंड यहाँ पर हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे स्टोरी को मैंने लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जितने भी लेसन्स हैं मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाता रहूंगा। और आप इस वीडियो को देखें, और वीडियो को देखने के बाद आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। और अब मैं नेक्स्ट लेसन के साथ फिर से आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। ओके ना।